Hello students, today that we are going to deal about the WBCS cells or white blood cells or white blood cells or white blood corpuscles. Got it? या अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बोला था जो ब्लड है, ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा अगर हम देखेंगे सेल्स होता है। तो प्लाज्मा और सेल जो होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स में मैंने आपको पहले बोला कि अगर हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल दैट इज द आरबीसीएस, वो तो हमने पढ़ा। द सेकंड टाइप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एज द डब्ल्यूबीसीएस सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स। तो द थर्ड वन इज दैट इज द प्लेटलेट्स। गॉट इट? प्लेटलेट्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा। प्लाज्मा फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा, सेल्स में हमने अगर हम देखेंगे आरबीसीएस। नाउ टुडेज इन दिस सेशन टुडेज टॉपिक इज अबाउट द डब्ल्यूबीसीएस सेल्स, दैट इज द white blood cells or white blood corpuscles. White blood cells or white blood corpuscles are also called as the leukocytes. We also call these cells as the leukocytes. What we call the leukocytes. Leukocytes, why we call these cells as the leukocytes? Because they are colorless. What they are? They are colorless because they lack the hemoglobin. इनमें तो hemoglobin present नहीं होता है, hemoglobin is absent, that is why they are white. Got it? They are white. So hemoglobin, it is also only present in the RBCs. That is why these cells are called as the red blood cells. So hemoglobin present नहीं होता है WBC में, तभी तो हम इनको बोलते हैं white blood cells. क्या बोलते हैं? White blood cells बोलते हैं, या बोलते हैं white blood corpuscles बोलते हैं, leukocytes बोलते हैं। ल्यूकोस का मतलब होता है white. Got it? तो अगर हम देखेंगे WBC cells की, they are wandering cells. What we call these cells are the wandering. These are the wandering cells. Wandering cells किनको बोलते हैं? That they are capable of coming out from the capillaries. For example, if it is a capillary and these cells are present here in the capillary, got it? And it is the tissue, got it? And tissue, you know very well that the tissue, it is made up of the cells. अगर अब इस टिश्यू को क्या हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस टिश्यू में क्या होगा, इस टिश्यू में फॉर एग्जाम्पल पैथोजेनिक पार्टिकल्स होंगे, इट इज अ पैथोजेनिक पार्टिकल्स। तो ये क्या, ये कौन सी ये शेप इख्तियार करता है? अगर हम देखेंगे ये एमोबाइड टाइप बनता है, आरबीसी जो बनता है एमोबाइड, एंड इट गेट्स स्क्यूज्ड फ्रॉम, ये किससे निकलता है? इट गेट्स स्क्यूज्ड फ्रॉम द कैपिलरी एंड एंटर्स इनटू द टिश्यू वेयर इट न्यूट्रलाइजेस व्हाट, वेयर इट न्यूट्रलाइजेस द बैक्टीरिया, वायरस, toxic substances. So these cells, these cells, they are wandering cells, and because they are capable of coming out from the capillaries by amoeboid. It is the amoeboid movement that they show, the amoeboid movement, and what we call this amoeboid movement, which the WBC cells show, we call this condition as the diapedesis. What we call the diapedesis. Now what is the diapedesis? Diapedesis is the amoeboid movement of the WBC cells. WBC cells का amoeboid type of movement, कैपिलरी से टिश्यू में आना, वहां पे क्या, वहां पे न्यूट्रलाइज करना बैक्टीरिया और पैथोजेनिक सेल्स को, वहां पे क्या करना, न्यूट्रलाइज। गॉट इट? सो आपको याद रखना है जो WBC सेल्स है उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट दे आर कलरलेस, दैट दे आर व्हाइट ड्यू टू द absence of hemoglobin. Hemoglobin is present only in the RBC cells. Got it? They are wandering cells. What they are? They are wandering cells and are capable, capable of coming out of the capillaries by amoeboid movement, and enters into the tissue where it neutralizes the bacteria, virus, or pathogens. And we call this movement as the diapedesis. So it means that the WBC cells, that it changes its shape. It changes it from spherical to amoeboid type, but this shape occurs, this shape only get formed during the diapedesis movement. Got it? Now what is the TLC? What is the TLC? That is the total lymphocyte count. What is the total lymphocyte count? So how we can measure it? What is the total lymphocyte count? TLC. अगर हम देखेंगे TLC is the number of WBC, number of WBCS, number of WBCS cells per per cubic millimeter. Got it? And it is approximately 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. Got it? Per cubic millimeter, plus minus 2,000 to
2000 to 3000, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे टोटल लिम्फोसाइट काउंट कितना होता है, 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में होता है। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेनर्स हाउ मच, दैट इज 6000 to 8000 WBC cells. Now what is the leukocytosis? These terminology that you have to remember, because this terminology is very important for the NEET examination point of view, got it? Now what is the leukocytosis? Leukocytosis किसको बोलते हैं? That it is an increase in the TLC condition, increase in the TLC total lymphocyte leukocytosis is the increase in the TLC। जब TLC का काउंट इंक्रीज हो जाएगा एक्सीड देन 6000 to 8000 से ऑनवर्ड्स, देन वी कॉल दिस ल्यूकोसाइटोसिस। आया समझ में? ये कब होता है, TLC कब इंक्रीज होता है? इट ऑकर्स during the bacterial and viral infection। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जब होता है, वायरल इन्फेक्शन, तब जाके ल्यूकोसाइटोसिस होता है, इंक्रीज होता है काउंट। इनका काउंट इंक्रीज होता है, WBC सेल्स का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आया समझ में? इसी तरीके से और एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। नाउ व्हाट इज द ल्यूकोसाइटोपिनिया किनको हम बोलते हैं, किसको हम ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं? अगर हम ल्यूकोसाइटोपिनिया की बात करेंगे, इट इज द डिक्रीज इन टीएलसी का काउंट, टोटल लिम्फोसाइट काउंट जब 6000 से कम हो जाएगा उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे टीएलसी इंक्रीज इन बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तब ल्यूकोसाइटोसिस होता है। मगर ल्यूकोसाइटोपिनिया अगर हम देखेंगे, इट ऑकर्स ड्यूरिंग द typhoid and AIDS due to the typhoid and AIDS infection, got it? तो ल्यूकोसाइटोपिनिया occurs, जिस तरीके से मैंने बोला ल्यूकोसाइटोसिस, it occurs due to the bacterial and viral infection। ल्यूकोसाइटोपिनिया कब होता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है when there would be the typhoid and AIDS in a person, got it? तो अगर हम देखेंगे TLC एक्चुअली ल्यूकोसाइटोपिनिया इज अ डिक्रीज इन द TLC, ये कब होता है? जब टाइफाइड और एड्स होता है, गॉट इट? तो ये कितना बनता है TLC कब तक कितना होता है? 4000 होता है, 4000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे और एक कंडीशन होती है, दैट इज ल्यूकेमिया। व्हाट इज द ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया क्या है? इट इज अ एबनॉर्मल इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज अ abnormal increase in what? Abnormal increase in TLC। जब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा TLC, टोटल लिम्फोसाइट काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? तो कितना होता है? मोर देन 1 लाख, ये आपको याद रखना है, 1 लाख। तो अगर हम देखेंगे ये कितना पहुंचता है, नॉर्मली तो 6000 to 8000 है, मगर अगर TLC 1 लाख तक पहुंच गया तो वी कॉल दिस कंडीशन एज द ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड कैंसर भी इसको बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक डिजीज। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक डिजीज भी हम इसको बोलते हैं, नियोप्लास्टिक डिजीज क्या होता है? ल्यूकेमिया ये होता है। ये कब हो जाता है? मैंने आपको बोला व्हेन देयर विल बी द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द TLC। कहां तक? 1 लाख तक अगर हम ब्लड सेल्स को काउंट करेंगे पर mm क्यूबिक में, देन इट इज अ ल्यूकेमिया, एंड दिस ल्यूकेमिया इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर और नियोप्लास्टिक डिजीज। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक डिजीज। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, नाउ व्हाट इज द रेशो ऑफ द WBC वर्सेस RBC? रेशो कितना होता है? WBC वर्सेस RBC कितना रेशो बनता है? अगर हम देखेंगे रेशो ऑफ WBC वर्सेस RBC, तो अगर हम देखेंगे WBC वर्सेस RBC कितना बनता है? 1:600, 1:600 इनका रेशो रहता है। इसका मतलब होता है RBC जो होता है वो ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द WBC। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ कंडीशन, दैट इज द साइज।
साइज के बारे में अगर हम देखेंगे, साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द WBC सेल्स, इट इज 8 to 15 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 8 to 15 माइक्रोमीटर ये होता है। तो अगर हम देखेंगे कहां से बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन, वेयर फ्रॉम द WBC गेट फॉर्म्ड, इट गेट फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो। कहां से बनता है? बोन मैरो से बनता है। कहां से बनता है? बोन मैरो से बनता है। या मैं बोलूंगा Peyer's patches से बनता है। Peyer's patches और the lymph nodes which are present in the intestines, got it? These organs, या मैं बोलूंगा lymph node से बनता है, lymph node से। ये आपको याद रखना है WBC कहाँ कहाँ से बनता है। lymph node से भी WBC बनता है, या thymus से बनता है। कहाँ से बनता है? thymus, या thymus से भी बनता है, thymus glands। या मैं बोलूंगा spleen से बनता है, got it? So these organs are called as a leukopoietic organs। हम इन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां से WBC बनता है। WBC कहां से बनता है? बोन मैरो से बनता है। पेयर्स पेचेस तो लिम्फ नोड्स ही होते हैं। कहां पे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करेंगे, या लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, या थाइमस स्प्लीन की बात करेंगे, इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। And the process of formation of WBC is called as a leukopoiesis। क्या बोलते हैं? Leukopoiesis। क्या बोलते हैं? Leukopoiesis। Now what is the leukopoiesis? Leukopoiesis is the formation, yeah, it is the process of formation of WBC as cells, got it? That is the white blood corpuscles or white blood cells. Now on the basis of what? Now on the basis of nucleus, and nature of cytoplasm, leukocytes are of two types। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बेसिस पे, या नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होगा, इन दो कंडीशन पे हमने WBC सेल जो है या ल्यूकोसाइट्स जो है, और इन दो बेसिस पे हमने ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो ल्यूकोसाइट्स है दैट दे आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज दैट इज द granulocytes, and the second one is called as the granulocytes. The second one is called as the granulocytes and agranulocytes। अगर हम granulocytes की अगर हम बात करेंगे, तो मैंने बोला ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। एक तो मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस पे, दूसरा मैं बोल रहा हूँ साइटोप्लाज्म पे। जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स किनको बोलते हैं? दैट ग्रेनुलोसाइट्स वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। आप देख सकते हो ये ग्रेन्यूल्स मैंने बनाए। तो ल्यूकोसाइट्स, मैंने आपको बोला ल्यूकोसाइट्स दो टाइप्स हैं on the basis of nucleus and nature of the cytoplasm, granulocytes, agranulocytes। So what are the granulocytes? These are the leukocyte cells in which the cytoplasm contains the granules, but the granules are of lysosomes and Golgi bodies। These granules are of lysosomes and Golgi bodies। जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडीज होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं। गॉट इट? सो अगर हम देखेंगे जो ग्रेनुलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज लोब्ड। क्या होता है? लोब्ड होता है। तो ये मैंने लोब्ड बनाया, यहां से ये मैंने लोब्ड बनाया, इट इज अ लोब्ड न्यूक्लियस। गॉट इट? या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, लोब्ड न्यूक्लियस को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये लोब्ड न्यूक्लियस है। गॉट इट? ये लोब्ड न्यूक्लियस है, या मैं ऐसे बना सकता हूँ, इट इज अ लोब्ड न्यूक्लियस। गोया कि जो ग्रेनुलोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स का ग्रेनुलोसाइट्स पार्ट है, तो मैंने बोला ग्रेनुलोसाइट्स, दीज आर द ल्यूकोसाइट्स इन व्हिच द साइटोप्लाज्म कंटेन्स द ग्रेन्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज। अपार्ट फ्रॉम इट दैट द न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। क्या होता है? लोब्ड। कितने होते हैं अगर हम देखेंगे कितने लोब होते हैं? 2 to 5 लोब्स होते हैं। And so they are called as the polymorphonuclear। क्या बोलते हैं? polymorpho
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो। क्यों बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस, बिकॉज दैट द न्यूक्लियस कंटेन्स द लोब, दैट द न्यूक्लियस इज लोब्ड वन, गॉट इट। जो इनका न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है, या हम इन शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं PMN, दैट इज अ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है। जो लोब्स होते हैं दैट दे आर कनेक्टेड, जो लोब्स होते हैं दैट दे आर कनेक्टेड, ये किससे कनेक्टेड होते हैं लोब्स, एक दूसरे के साथ। लोब्स आर कनेक्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, दीज आर एक्चुअली द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। मैं यहां पे लिखूंगा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जिनसे लोब्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर हम देखेंगे ये कहां से बनते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, दे आर फॉर्म्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो से बनते हैं। कहां से बनते हैं, रेड बोन मैरो के जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइलियोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, माइलियोब्लास्ट, माइलियोब्लास्ट क्या बोलते हैं, माइलियोब्लास्ट, माइलियोब्लास्ट सेल्स। जो ये प्रिकर्सर्स एक्चुअली जो ये होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, दैट दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स व्हिच वी कॉल्ड एज माइलियोब्लास्ट सेल्स, क्या बोलते हैं उनको, माइलियोब्लास्ट, गॉट इट। अगर हम देखेंगे ये ग्रैनुलोसाइट्स कितना बनाता है, हाउ दे मेक द टोटल WBC, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। गोया कि ग्रैनुलोसाइट्स ही WBC, अगर ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे 60 to 65% ग्रैनुलोसाइट्स ही होते हैं, जो रेस्ट होते हैं वो ग्रैनुलोसाइट्स बनाते हैं। गोया कि ग्रैनुलोसाइट्स ज्यादा प्रेजेंट होता है, गॉट इट, ब्लड में। तो ग्रैनुलस जो द ग्रैनुलस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म जो होता है, जो ये ग्रैनुलस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज, गॉट इट, दैट दो द ग्रैनुलस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक डाई। इनका कोई स्पेसिफिक डाई लगता है, ऐसा नहीं है, तो इनका स्पेसिफिक डाई लगता है क्योंकि वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज ग्रैनुलोसाइट्स इटसेल्फ इट गेट डिवाइडेड इनटू द सब 3 टाइप्स, गॉट इट। तो हम वहां पे भी इस ग्रैनुलोसाइट जो होता है ये भी इनके भी 3 सब टाइप्स है, और वो 3 सब टाइप्स किस पे है, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस एंड स्टेनिंग रिएक्शन। इनमें कौन सा स्टेनिंग लगता है, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा ग्रैनुलोसाइट्स दैट दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप, यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन कौन सा टाइप है। द फर्स्ट वन इज दैट इज द एसिडोफिल्स, क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स मैं बोल रहा हूं कि ग्रैनुलोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। पहले मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियस के बेसिस पे और स्टेनिंग रिएक्शंस के पे, या स्टेनिंग रिएक्शंस पे जो ग्रैनुलोसाइट्स है दैट दे आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एसिडोफिल्स, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द बेसोफिल्स, basophils, got it। the third one is called as the neutrophils, तो तीसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। so on the basis of nucleus and staining reactions, these staining reactions of the granules which are present inside the cytoplasm of the granulocytes, got it, on these two conditions, that is on the basis of nucleus and the granules which are present in the cytoplasm of the granulocytes, that the granulocytes are get divided into the 3 subtypes. The first one acidophils, the second one is that is the basophils, and the third one is that is the neutrophils. Now what are the various characteristic feature of acidophil, basophil, neutrophil? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले हम पढ़ेंगे टोटल WBC कितना होता है, इसमें या लाइफ स्पैन क्या होता है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन क्या होता है, या ये किससे स्टेन होते हैं, या इनकी शेप क्या होती है, या इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज इनकी जो फंक्शन है वो हमेशा नीट एग्जामिनेशन में आता है। तो आपको रिमेंबर, आपको याद रखना है ये इनकी रिएक्शन, इनकी फंक्शंस क्या है, या इन अगर हम देखेंगे इनका शेप क्या होता है न्यूक्लियस का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डील करेंगे।